Hello dear students, in this video we will see solution of lesson 17 verbs transitive and intransitive of Cornerstone grammar book. This is exercise A given in page number 108. In this exercise we have to indicate the verb and we have to tell whether those verbs are transitive verb or intransitive verb, and if it is transitive verb then we have to mark the object in the sentence. So let's see. First is the dancer lifted the well. Here lifted is verb and it is transitive verb. Why? Because there is object in the sentence. Okay, if you will find object in a sentence, then you think that the verb of that sentence is transitive verb. Okay, so here lifted is verb and well is object which is receiving action of the verb lifted. So it is transitive verb. Second one is the dog jumped on the table. So here jumped is verb and it is transitive verb because table is object. Next is third number, I know that men. So here know is verb, men is object and it is transitive verb. Fourth number, I ran 5 kilometers. So here ran is verb but there is no object in this sentence, so it is intransitive verb. Fifth number, a light rain fell on us. So fell is verb, us is object and it is transitive verb. Sixth number, blow the whistle. Here blow is verb and whistle is object, so it is transitive verb. Seven number, the bird sang sweetly, sang verb and there is no object in this sentence, so it is intransitive verb. The principal hoisted the flag. Here hoisted is verb and flag is object, so it is transitive verb. 9 number, the men sang a carol. So here sang is verb, carol is object and it is transitive verb. Ring the bell now. Ring verb, bell object and transitive verb. 11 number, she speaks politely. Here speaks verb and there is no object in this sentence, so it is intransitive verb. The passenger waited at the airport. Waited verb, airport object and object is there, so it is transitive verb. So you can underline the verb and after underlining upon it you can write V. अंडरलाइन करने के बाद ऊपर में V लिख सकते हो ताकि आप लोग को पता रहे, ध्यान में रहे कि वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके O लिख देना ताकि आपको ये पता चले कि वो ऑब्जेक्ट है, और फिर ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव के लिए आप लोग T या फिर I लिख लेंगे. Next is exercise B. Here you have to underline the object and circle the indirect objects. Earlier I had taught you that always indirect object comes before direct object. हमेशा indirect object डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही सेंटेंस में आता है, लेकिन जहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ हुआ रहता है अगर सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है. ठीक है, लाइक सी 1 नंबर, शी गेव द बुक टू मी. यहाँ पे वर्ब क्या है? गेव है एंड बुक इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया है. देन सेकंड नंबर, ही गेव हर अ रिंग. गेव यहाँ पे वर्ब है एंड हर इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिंग इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है. तो जिन सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज़ हुआ रहेगा तो उन सेंटेंस में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दिखेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के,
और जहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं रहेगा वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिखेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। थर्ड नंबर, सो यू हैव टू अंडरलाइन द direct object and circle the indirect object in this exercise. Third number, you see, I bought a purse for her. So here purse is direct object, her is indirect object. Grandma told us a story. Us indirect object, story direct object. The principal gave me a prize. Me indirect object, prize direct object. Kavita wrote a letter to him. So here letter is direct object and him is indirect object. Ship give us wool. Us indirect object, wool direct object. Mother made dinner for my friends. So dinner direct object, friends indirect object. The puppy played with the ball. So here ball is direct object. There is no indirect object in this sentence. My mother baked a cake for me. So cake direct object and me is indirect object. Next is exercise C. In this again you have to indicate verb को शो करना है और बताना है कि whether they are transitive verb or intransitive verb, and if it is transitive verb then you have to mark the object. अगर transitive verb है तो object को शो करना है और साथ में complement को भी दिखाना है। और transitive के लिए हम T लिखेंगे, intransitive के लिए I लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिखेंगे या फिर डी ओ लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा, और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लिखेंगे सी। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। लाइक यू सी नंबर 1, रॉब हैज़ फॉलन इल. सो हियर फॉलन इज, हैज़ फॉलन इज वर्ब एंड इल इज कॉम्प्लीमेंट। ये बता रहा है रॉब के बारे में। रॉब एक लड़का है जो बीमार है, ठीक है, तो वो रॉब के बारे में बता रहा है कि वो बीमार है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इल वर्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो आप लोग उसको एस सी भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मैंने सिर्फ सी लिखा है, आप सी भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड नंबर, द क्रो सिम्स इंजर्ड। सो हियर सिम्स वर्ब है और इंजर्ड है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्रो के बारे में बता रहा है कि क्रो इंजर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। द क्रो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड नंबर, दे आर अ स्लिप। यहाँ पे आर वर्ब है और अ स्लिप कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट दे के बारे में बता रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इनट्रांजिटिव वर्ब। राना टोल्ड मी अ सीक्रेट। तो यहाँ पे टोल्ड वर्ब है, राना सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसीलिए ये ट्रांजिटिव है, टी लिखोगे सेंटेंस के आखिरी में क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। फिफ्थ नंबर, आवर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स। सो यहाँ पे लाइक वर्ब है और एप्पल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव
वर्ब होता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इंट्रांजिटिव होता है। डोंट कॉल हिम अ फूल, तो यहाँ पे कॉल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, अ फूल, और ये फूल वर्ड ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये हिम के बारे में बता रहा है, हिम को बोल रहा है कि वो फूल है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए मैंने ओ सी लिख दिया है। ठीक है, तो ओ सी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो फूल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। 7 नंबर, द हाउस इज़ ऑन रेंट, सो इज़ वर्ब और रेंट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये हाउस के बारे में बता रहा है कि हाउस रेंट पे है, तो ये रेंट कॉम्प्लीमेंट है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। 8 नंबर, दे पोस्टेड द लेटर, तो पोस्टेड यहाँ पे वर्ब है, और लेटर्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब। 9 नंबर, वी फाउंड हिम गिल्टी, तो हिम यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाउंड यहाँ वर्ब है, हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो गिल्टी है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जब कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट के और डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट उसको कहा जाता है। तो इस आप लोग गिल्टी को अंडरलाइन करेंगे और ओ सी लिख देंगे, और वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। 10 नंबर, द प्लेयर्स सीम टायर्ड, तो सीम वर्ब है, टायर्ड कॉम्प्लीमेंट है, टायर्ड वर्ड बता रहा है कि प्लेयर्स टायर्ड है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। 11 नंबर, द न्यूज़ सीम्स ट्रू, सीम्स वर्ब और ट्रू है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये न्यूज़ के बारे में बता रहा है कि वो सही है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि द न्यूज़ सब्जेक्ट है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। 12 नंबर, मॉस्किटोज अपीयर एवरीवेयर, अपीयर क्या है, वर्ब है, और एवरीवेयर कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉस्किटो के बारे में बता रहे हैं कि मॉस्किटो चारों तरफ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। 13 नंबर, द बॉय रैंग द बेल, यहाँ पे रैंग वर्ब है और बेल ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। 14 नंबर, द पैसेंजर्स वेटेड पेशेंटली, तो वेटेड यहाँ पे वर्ब है, और पेशेंटली वर्ड पैसेंजर्स के लिए लिखा गया है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, पैसेंजर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में ये वर्ड बोला जा रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आप लोग एस सी या फिर सी लिख सकते हैं, और फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं है।